Hello everyone, this is Sunil Singh from Education My Right. Topic we are going to cover is Biosphere Reserves in India. Brief about me, MBA from IIM Lucknow, visiting faculty at some of the top B schools. I also teach current affairs and few more topics into some of the well-known institutes. What are Biosphere Reserves? पहले ये समझो कि है क्या ये. This is very important. It is representative part of natural and cultural landscapes extending over large area. ये समझो, ठीक है. ये representative part होना चाहिए. और three types it can be terrestrial, coastal और marine. कुछ भी हो सकता है. What are the criteria for designation of BR? The first one is effectively protecting and minimally disturbed core area. There are three areas into our biosphere reserve. We will read them about them. But for the time being, understand that the innermost area is called core area. Okay? And that core area has to be effectively protected and minimally disturbed. The second point is large enough to sustain viable population representing all tropic levels. ट्रॉपिक लेवल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट के अंदर. इसका मतलब होता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंटिंग ए फूड चेन. सो योर बीआर और बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशंस रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लेवल्स. थर्ड क्या है? The involvement, that is cooperation of local community. This is very important point, that we should understand that all the communities which are locally living into your biosphere reserve, their cooperation should be extended. The final part is preservation of traditional tribal or rural modes of living. अगेन आप इसको समझने की कोशिश करो कि if we have designated one area as a biosphere reserve, we cannot ask our tribals to move out of that area, right? That is why we are saying that there has to be harmonious use of the environment, and traditionally whichever tribals and rurals are living into that, they have to cooperate or they has to be involved into this. Moving ahead, now we will come to structure of biosphere reserve. There are three area. Core, this is innermost. The first one is what? Core, this is innermost. Second one is buffer zone. This is between your transition zone and core area. Outermost is transition zone. Let's understand one by one. What is core zone? Suitable habitat for numerous plants and animal species. It should include higher order predators. It can be a national park, sanctuary, protected or regulated area. There is another discussion around what is the difference between national park, sanctuary, protected area or biosphere reserve. Okay, that we will discuss separately. But here now you understand that your core zone could be any one of these, and that comes under Wildlife Act 1972. This has to be kept free from human pressure. ये पॉइंट याद अगर रखोगे तब डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में. ठीक है. इन कोर जोन, the core zone itself has to be free from the human pressure. That is the mandatory criteria. See in this diagram, the innermost, which is core area, this is monitored. That means that it has to be free from human pressure. Buffer zone, it is between your transition zone and core zone. So इसका फंक्शन क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि ये अपने core zone को प्रोटेक्ट करेगा. See the first point, help in protection of core zone. Second point क्या है? Limited recreation, tourism, fishing, grazing, research and educational activities are to be encouraged. So इसमें most important, बाकी तो ठीक है जो आपका रिसर्च एंड एजुकेशन है, लेकिन ये जितने भी एक्टिविटी है, लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज्म, फिशिंग, दे हैज टू बी लिमिटेड. दैट इज दे हैज टू बी मॉनिटर्ड टू एक्सटेंड कि वो ज्यादा ना हो जाए. अलाउड है बट बहुत ही मिनिमम. दीज डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड है बट to the extent that they do not adversely affect the ecological diversity. So यहाँ पर देखो
ई क्या है, एजुकेशन ट्रेनिंग अलाउड है। टी क्या है, टूरिज्म भी अलाउड है। ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड है, बट टू द लिमिटेड एक्सटेंट। ट्रांजिशन जोन ये सब फ्री है। ट्रांजिशन जोन में जोन ऑफ कोऑपरेशन है ये, इसके जस्ट बाहर अगर आप देखोगे तो आपको पूरी सिटीज भी मिल जाएंगी इसके आसपास। और दिस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, क्रॉपलैंड्स, मैनेज्ड फॉरेस्ट, और दिस इज इंटेंसिव रिक्रिएशन। ये वर्ड याद रखो, इंटेंसिव से बाहर वाले में सेटलमेंट भी होगा, इंटेंसिव रिक्रिएशन होगा, आपका टूरिज्म वगैरह भी चलेगा। ठीक है, सो वापस से आप अगर एक बार रिवाइज करोगे तो ये इनर वाला है, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है। इस वाले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउड है, बाकी सब चीजें आपकी लिमिटेड है, बाहर वाले में अलाउड है बाकी चीजें। नाउ फंक्शंस क्या होता है बायोलॉजिकल आपका इसका, ठीक है। सो तीन इसके फंक्शंस है, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। और इसके फीचर्स में या बाद में स्लाइड में पढ़ लेना, बट यहां पर आप देखो कि जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला डाइवर्सिटी, सेकंड सस्टेनेबल यूज, थर्ड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, फोर्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो इस वाले पॉइंट में अगर आप देखो तो जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑन विच देयर evaluation depends, right? So we need to safeguard, and this is one of the most important function of our BR. Moving ahead, biological reserves are, how many biological reserves? We have 18 biological reserves in India, and this map is most important part of this video. So धीरे धीरे मेरे को सुनते रहो, समझते रहो, चाहिए तो बीच में पॉज कर लेना एंड देन लर्न अगेन, okay? But I'm going to cover and I'm going to give away some of the tricks how to remember which of your biological or biosphere reserve falls into which of your state. Typically what I have seen that people give long sentences. वो बोल देते हैं कि वो कोई एक राजा था, राजा वहां पर आया, उसने आके स्टेज पे चढ़ गया, स्टेज पे चढ़ के उसने भाषण दिया, उसका भाषण अच्छा नहीं था, उसके बाद से रानी आ गई, और फिर क्या बोलेंगे आपको कि उसके अंदर से एक एक वर्ड आप पिक करो और एक एक वर्ड आप उस राज्य से और स्टेट से मैच करो जिसके अंदर वो फॉल करेगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन, you need to have everything ready at your tips. You cannot go on forming the long sentences and then try to remember which was mapped to what. So that's the reason I always suggest that you people have to understand or have to map each and every biosphere reserve to each and every state. That is one to one relationship rather than multiple to one relationship. सो मैं जो यहाँ पर समझाऊंगा आपको, आप एक अगर बायोस्फीयर रिजर्व याद करोगे तो आपको तुरंत स्टेट याद आ जाएगा, आप वहां पर कुछ भी और सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सबसे पहला क्या है आपका, हम टॉप से शुरू करेंगे। क्या है? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड, ठंडा, डेजर्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप कंफ्यूजन कहां पर होगी कि कोल्ड डेजर्ट है तो अरुणाचल में भी हो सकता है, वहां भी बहुत कोल्ड है, हिमाचल में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी। कैसे याद रखोगे आप? हिम क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ क्या होता है? ठंडा होता है। सो हिम कोल्ड, दैट इज हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट आपका आएगा। ठीक है, याद हो गया ये। नाउ पिन वैली। पिन वैली, चंद्रताल और स्नो लेपर्ड, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोल्ड डेजर्ट के साथ याद रखने के लिए। पिन वैली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पिन वैली क्या है, कहां है। चंद्रताल भी पूछा गया है पहले कि कहां है, और स्नो लेपर्ड अगर पूछा जाए, कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाएगा कि दिस इज द प्लेस वेयर स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड आउट, ठीक है। एंड देयर विल बी अनदर 3 sentences and combining that you have to tell that this they are referring to which of the biosphere reserve. That's the reason cold desert के साथ you have to remember Pin Valley, Chandratal and snow leopard. Okay, moving ahead, second one, Nanda Devi. Nanda Devi, to remember this, I will tell you a story. Nanda was a girl who was asked or in fact forced to marry one prince. She was one girl in Uttarakhand. So what she did,
she moved away out of his house and she went. And by the way, this is the true story, okay, what legends say. What did she do? That she merged herself into the mountain. So how to remember this now? The first of all, Nanda girl story, if you remember, you will remember that this was into Uttarakhand and Nanda Devi mountain. But उत्तराखंड के अंदर खंड आता है. खंड मीन्स part. So Nanda the girl, she merged herself into part of the mountain. So इसको एक दो बार अगर ध्यान से सोचोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, स्टोरी याद रह जाएगा. सी इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. इट्स ऑल अबाउट, बहुत ज्यादा याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो. Once you understand, you will be able to map the things. नंदा देवी स्टोरी यू रिमेंबर, खंड उत्तराखंड ये वहीं होगा, you will know that. Again, it is cold, snow leopard तो होगा ही होगा. This is the second highest peak in India. याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है. So Valley of Flowers falls into where? Nanda Devi. ये भी कई बार पूछा जाता है. So how Valley of Flowers is, how you can remember that? Nanda Devi goddess, you offer flower, right? So Nanda Devi Valley of Flowers. Next कौन सा है? Next is कंचनजंगा. कई बार मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत करूंगा एंड दैट इज इंटेंशनल, सो दैट आप उसको याद रख पाओ या मैप रख पाओ. कंचनजंगा ये सिक्किम में है, ठीक है. स्कर्मिसर्स आपने सुना होगा, ये वो जो भाला टाइप फेंकते हैं, ये आप वर्ड देख लेना, जो सिक्किम से मैंने डिराइव किया है. स्कर्मिसर्स, स्कर्मिसर्स, ठीक है. और आपका कंचनजंगा में जंग वर्ड आता है, ठीक है. सो जंग आपका कौन करेगा? स्कर्मिसर्स करेंगे. सो स्कर्मिसर्स आपका जाके भाला फेंकेंगे, वो जंग करेंगे. इसीलिए स्कर्मिसर्स, दैट इज सिक्किम, एंड कंचनजंगा फॉल्स अंडर सिक्किम. यहाँ पर अगेन स्नो लेपर्ड है और रेड पांडा है. रेड पांडा यहाँ पर याद रखना. We move to further right side, that is the eastern part. Top one is again दिहांग एंड दिबांग. इसको कैसे याद रखोगे? देखो, अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ अपनी हमेशा फाइट होती रहती. अगेन स्टोरी टेलिंग, ठीक है. स्टोरी याद रख लो, एक बार स्टोरी दिमाग में बैठ गया, कोई न्यूमेनिक कुछ नहीं चाहिए. सिंपली यू कैन रिमेंबर दैट. आई एम गिविंग यू ट्रिक्स टू रिमेंबर rather than न्यूमोनिक्स. एक बार याद रख लो, यू विल रिमेंबर दैट. नाउ दिहांग दिबांग, यहां पर अपना चाइना के साथ लड़ाई चल रही है. अगर चाइना ने किसी को यहां पे पकड़ लिया तो क्या करेगा? पहले बैंग करेगा, मारेगा, पीटेगा, देन हैंग करेगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिहांग एंड दिबांग विल फॉल इनटू अरुणाचल प्रदेश. यहां पर एक और ये पार्ट याद रखने वाला है. यहाँ पर मस्क डियर है. सो आई एम सेइंग रन मस्क डियर, मतलब कि बिफोर चाइना कैचेस यू एंड बैंग एंड हैंग करे, यू प्लीज रन. सो आई एम आस्किंग मस्क डियर टू रन. देन नेक्स्ट वन इज डिब्रू साइकोवा. ये बहुत आसान है याद रखना, क्योंकि डिब्रू एक प्लेस है विच इज इनटू आसाम, एंड इफ यू रिमेंबर डिब्रू, you will remember Dibru Saikova into Assam. Next one is Manas. मानस या मानस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आशा कई बार एग्जाम में आता है ये. So how to remember this? First thing, there are two prominent animals which you have to remember. One is the golden langur and the second one is pygmy hog. Pygmy hog के ऊपर कई क्वेश्चंस आए हैं पहले और आते रहते हैं, आप उसे याद रखें. Pygmy hog and golden langur. याद कैसे करोगे? ये देखो, मानस आसाम, आसाम मानस, मानस में एएस और इसमें एएस आसाम. तो अगर आप मानस जैसे ही पढ़ोगे, याद रखोगे कि अगर इसका ये एक्सटेंशन आसाम है, यहाँ से मानसाम, मानसाम, ये ऐसे ही आप पढ़ते रहो, आपको याद हो जाएगा मानस आसाम में है. नेक्स्ट वन इज नोकेरक, नोकरक, ओके, नोकरक, नोकरक. सो आई एम सेइंग, सी यहाँ से अगेन ये जो पार्ट है, दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया ऑफ एंट्री फ्रॉम बांग्लादेश. सो व्हाट वी आर सेइंग दैट प्लीज स्टॉप Bangladeshis from entering
into मेघालय और इंडिया। नो करेक्ट, नो एंट्री, उसे रोक के रख, नो करेक्ट, रोक के रख, मेघालय में एंटर ना करने दे। सो ये हो सकता है आपका। ये थोड़ा याद रखने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसका बहुत ही परफेक्ट ये वे नहीं है याद रखने का, बट आई वुड से कि इसे एक दो बार पढ़ो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सुंदरबन, वेरी इजी टू रिमेंबर, मैं नहीं बताऊंगा इसको याद रखने का। रॉयल बंगाल टाइगर इसके अंदर है, मिलता है, ये याद रखो आप। चलो हम यहाँ से वापस अब वेस्टर्न पार्ट से शुरू करते हैं। रन ऑफ कच्छ, अगेन कच्छ गुजरात में है, बहुत ही आसान है ये, इसको याद रखो आप। और इसके अंदर इंडियन वाइल्ड एस मिलता है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, और ये बोलते हैं कि सॉल्टी मार्सेस होते हैं, वी फाइंड इंडियन वाइल्ड एस, विच पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पचमरी। पचमरी और पन्ना, I will tell you a very simple way to remember. You see Madhya Pradesh, this is related to 1, 2, 3, 4 and 5. This is surrounded by 5 states. Count again, 1, 2, 3, 4 and 5. So if you remember पांच, you will remember पचमरी। मध्य प्रदेश पचमरी, क्योंकि वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। पचमरी में यू विल फाइंड फ्लाइंग स्क्विरल, याद रखो ये। पन्ना, अगेन पन्ना आप इसी से, पंचमरी 5, पन्ना 5, ये भी याद रह जाएगा, इसको मैं ट्रिक बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन है। आप देखो तो ये पन्ना रिवर भी है, पन्ना में टाइगर रिजर्व भी है, तो ये याद रह जाएगा आपका, वही पंचमरी 5, पन्ना 5। नेक्स्ट वन इज अचनकमार और अमरकंटक। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक हिल्स है, वो हिल्स के ही, ये अमरकंटक रीजन भी इसको कई बार बोला जाता है। तो इसमें आप याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखो, 36 और अचनकमार। सो अगर आपका किसी से 36 का आंकड़ा है, ठीक है, मतलब कि यू आर नॉट लाइकिंग सम पर्सन, यू आर हेटिंग समवन, सो हाउ यू, व्हाट यू डू, उसे अचानक मार देते हो, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर छत्तीसगढ़, 36 का आंकड़ा अचानक मार, सो अगर इसे ऐसे पढ़ो, अचानक मार, अचानक मारा मैंने किसी को, 36 का आंकड़ा था, मैंने मार दिया, 2-3 बार इसे रिपीट करो, याद हो जाएगा। एंड अचानक मार एंड अमरकंटक इज पार्ट ऑफ 2 स्टेट्स, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये देखो यहाँ पे डबल डॉट्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज सिंपलीपाल। हाउ यू विल रिमेंबर सिंपलीपाल, आई विल टेल यू अ वे टू रिमेंबर। शिशुपाल याद है, सिंपलीपाल, शिशुपाल। एंड by the way, these are the ways which I used to remember, okay, and for me it works perfectly fine. I think with practice you will also remember them. सिंपलीपाल, शिशुपाल, उड़ीसा में पूरी टेम्पल है, सबको पता है, ठीक है, और वो किसका है, कृष्णा गॉड का है। तो कृष्णा गॉड ने क्या किया था, शिशुपाल का वध किया था, तो इसीलिए ये पास पास ही होगा, ठीक है, ये स्टोरी याद रखो। ये देखो उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी में कृष्णा गॉड है, कृष्णा गॉड ने शिशुपाल का वध किया था, दैट्स व्हाई सिंपलीपाल हैज टू बी देयर इन उड़ीसा। नाउ वी गो डाउन, द फर्स्ट वन इज शेषाचलम, शेषाचलम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए हिल रेंज है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल को वैसे ही याद होगा, बट स्टिल शेषाचलम में बालाजी, जो आपने तिरुपति बालाजी का नाम तो सुना ही होगा, ही इज पार्ट ऑफ, उनका जो भी टेम्पल है वो पार्ट है इस हिल रेंज का, एटलीस्ट सम पार्ट इससे टच होता है, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर बालाजी टेम्पल, देन गॉड शेषनाग, नाग, उसके ऊपर शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान बैठते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स, इफ यू जस्ट ट्राई टू रिलेट बालाजी टेम्पल, गॉड, नाग, शेषनाग, शेषाचलम, ये याद हो जाएगा आपको, दैट इट्स इन आंध्र प्रदेश, ओके, बिकॉज बालाजी टेम्पल इज इन आंध्र प्रदेश। दिस पार्ट नीलगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, बिकॉज
नीलगिरी इज पार्ट ऑफ 3 स्टेट्स। कौन कौन सा? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। याद कैसे रखोगे? वाटर इशू से मैं बोलता हूँ याद रखने को। देखो नील, नील क्या है? नील आपका जो नील का कलर जो आपका वाटर होता है, ठीक है, वाटर आपका जो नील बोलते हैं उसे, इसलिए मैंने वाटर को नील से मैं रिलेट कर रहा हूँ। नील, नीर, वाटर, वाटर गिरा, नीलगिरी, पानी गिरा। पानी गिरा अगर आपको याद रह जाएगा तो याद आ जाएगा कि तीनों का, क्योंकि द फाइट बिटवीन these 3 states, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, is still on, and that is related to Kaveri River. Okay, so if you remember Nilgiri, water gira, you will remember that this is part of these 3 states. Now you have to remember that Nilgiri, Tahar, lion-tailed macaw, these 3 are part of Nilgiri. नीलगिरी, ताहर तो यू कैन आइडेंटिफाई, बट लॉयन टेल्ड मकाओ ये बहुत बार ऐसे ही आता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अगस्ता मलाई, आपको रिमेंबर है तो एक वीडियो में, अगर आप याद हो तो एक वीडियो में मैंने बनाया था अष्टामुडी वेटलैंड, आपका जहाँ पे वेटलैंड का वीडियो बनाया था मैंने। तो अगर आपको इतना भी याद रह जाए कि अष्टामुडी, और वहाँ पे मैंने टेक्निक भी बताई थी। So if you remember Astamudi wetland is into Kerala, you will remember that Agastya Malai is in Kerala and your Tamil Nadu. First of all, the spelling itself or the pronunciation itself, Agastya Malai. Most of the places in south, you will if you try to pronounce them, they will mostly match with this Malai, Agastya and all those things. So that is how you can identify that Agastya Malai is part of Kerala. And again, not a perfect way to remember, but with practice you will remember it. Gulf of Mannar. How I used to remember this, that Mannar, Munna, Gulf of Mannar, Munna. Yeah, here we have Sri Lanka, right? So I used to say that Sri Lanka is Munna of India. Okay, and that is how Gulf of Mannar, that is Munna, falls between Sri Lanka and India. Gulf of Mannar, Munna, इंडिया का श्रीलंका मुन्ना है। यहाँ पर एक एनिमल जो आपका मिलता है वो डुगोंग है। ये सी उसके जैसा, गाय के जैसा होता है, या सी हॉर्स टाइप का, और ये आपका सी के अंदर मिलता है। ये याद रखो, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। लास्ट वन, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। ठीक है, एक और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया में कहाँ मिलता है? भितरकनिका में मिलता है, यहाँ पे उड़ीसा में। ग्रेट निकोबार ये याद रह जाएगा, इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आई एम मूविंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, विच इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB. There are 11 in India out of these 18 biosphere reserve which are part of MAB. So कई बार ये बोल देते हैं कि which of these are part of MAB. So you have to remember these 11. ठीक है, what is MAB? First of all, it is intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and their environment. Again, remember this, people and their environment. It's launched by UNESCO. कौन कौन से 3 इशू पे फोकस करता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको तीनों हर जगह मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस आपको बचाना है, क्लाइमेट चेंज आपको अवॉइड करना है कि उसके कोई इम्पैक्ट पड़े, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ आप नोटिस करोगे अगर इसमें, तो दीज आर, ये जितने भी इसमें एडेड है MAB में, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तभी ये MAB में ऐड होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीसीज। नीलगिरी अगेन आपने देखा कि 3 है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। गल्फ ऑफ मन्नार कैसे याद किया था? गल्फ ऑफ मुन्ना, मुन्ना श्रीलंका, इंडिया, ये ठीक है आपका, ये तमिलनाडु का लास्ट पार्ट पे टच होता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी, मैंने एक स्टोरी सुनाया था आपको, हाउ टू रिमेम्बर दैट इट इज इनटू उत्तराखंड। नोकेरक, ये भी मैंने बोला था मेघालय में, रोक के रख। पंचमरी 5 स्टेट्स मध्य प्रदेश। सिंपलीफाल मैंने बोला था, कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, पूरी उड़ीसा, यू कैन रिमेम्बर। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, नो ट्रिक टू रिमेम्बर। ये क्या मैंने अचनक मार
अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंने बोला था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 36 का आंकड़ा आप अचानक से मार दोगे। अगस्त्य मलाई, ये भी मैंने याद रखने का आपको बताया था कि केरला एंड तमिलनाडु के अंदर ये फॉर्म करता है। एंड फाइनली कंचनजंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे जंग स्कर्मिसर्स एंड दैट विल बी अंडर सिक्किम। दिस इज द रीसेंट वन, द कंचनजंगा इज द लास्ट वन विच इज एडेड टू द एमएवी एंड they might ask in the exam. Again, I have just listed all the 18 here for your reference. See this, your Nilgiri Biosphere Reserve, your Western Ghats, this is from Western Ghat, Tamil Nadu, Kerala, and Nilgiri Tahar, lion-tailed macaw. Nanda Devi Reserve, Himalayan black bear and snow leopard, ठंडा है. Gulf of Mannar, Dogang. Nokirak red panda is found here. Sundarban Royal Bengal tiger, मानस, ठीक है, इसके अंदर गोल्डन लैंगूर एंड पिग्मी हॉक, ये याद रखो. आसाम रूफ्ड टर्टल, ये तो याद रह जाएगा. हिस्पिड हेयर, ये भी पूछा जाता है. सिंप्लीफाल, शिशुपाल, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है. एंड यू फाइंड एशियाटिक एलिफेंट, गौर, रॉयल बंगाल टाइगर. दिहांग दिबांग, ये कहा था, अरुणाचल का था, बोला बैंग एंड हैंग. इसके अंदर आपको मिसमी तस्कीन एंड मस्क डियर मिलता है. पचमरी, पचमरी मैंने याद रखा है 5 स्टेट्स. जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, ये क्या है आपका अचनक मार अमरकंटक. 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, ये कभी पूछा जा सकता है, ठीक है. ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इंडियन वाइल्ड एस. कोल्ड डेजर्ट, स्नो लेपर्ड. कंचनजंगा, रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड. अगस्त्य मलाई, नीलगिरी ताहर एंड एलिफेंट. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ग्रेट निकोबार. डिब्रू साइकोवा, वाइट विंग्ड वुड डक, कोई बात नहीं, याद नहीं भी रहता है तो. सिसाचलम, ये याद है, अगर ये याद रख लो. स्लेंडर लॉरियस, पन्ना टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर एंड स्लोथ बियर. So this is where I end this topic, Biosphere Reserve. Humble request, please subscribe, like and share. Thank you.